The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises encourages and supports the use of digital transactions. The use of digital payment systems offers incentives in the form of cashback and discounts. There are more than 9 million GST registered MSMEs, and around 75% believe that technology solves many of their challenges. Hello, and welcome to Rabbi Rashi Foundation. Today, we welcome Mr. Nat Parmeshwaram, who is the Director, Corporate Affairs, PayPal India. Welcome to the show, sir. Thank you, Rashi. Thanks for having me here. You have a great platform. I like the name Ra, and it also talks about here to help, which is quite a nice purpose and name attached to it. So, Nat, sir, I would request you please tell us something about yourself. Few things about myself. I've always been in Mumbai, as they say. मैं पैदा भी यहीं हुआ हूँ और बिगड़ा भी यहीं हूँ. Okay, so always in Mumbai. Number two, I stay here with my family and been with PayPal close to 9 years now. Next year it will be 10 years. So it's been a good association with PayPal. And the other point which is relevant to the audience here might be that, I also come from a family of small businessmen. My father was a micro enterprise, a trader all his life. I also tried to, assist him in his business, but I was very bad at it before then I joined the corporate life. So I'm very happy to speak to this community because I can relate to it and all the challenges that we face as a small business in India. So tell me, how does PayPal work and how does one open an account with PayPal? Over to you. Okay. Rashi, before we start, I must congratulate all your listeners and participants. Many of them whom I know are micro enterprises. One, on the occasion of Janmashtami, which we are all celebrating, शुभकामनाएं to everyone, whoever is listening, सबको कृष्ण जन्माष्टमी के शुभकामनाएं. Number two, I want to congratulate them for showing the resilience and the fight. The COVID has not been easy for anybody, but in particular the micro enterprises and MSMEs have taken the brunt of it. But they have shown great resilience to come back from that. We are not yet out of the crisis, but I'm sure the green shoots that we are seeing, thanks to this resolve and resilience of the SMEs, we should come back to a normal rates of growth. So best wishes to them. And as our Prime Minister says, "Do gaj zaruri or mask hai zaruri." So with that, I'm very happy to come and share some of the perspectives that we have. So to your question, before we get into digital payments, I think what I wanted to share with the people who are listening to our session and interview is that first let's look at the opportunity that we have. Okay, here is an Indian micro enterprise today with the internet has the opportunity that take his shop, whether it is product or service, to where the customer is. Okay. In COVID, we can't expect the customer to come to a store. Okay, so what internet allows to do, or platforms like PayPal allows to do, is be able to take this business of the micro enterprises, India's local business, global, and take his shop to the customer. Okay, so that is the opportunity. So what is that opportunity? It translates into 2-3 things. Okay, the opportunity itself is to offer India-made goods or services to the global market, which is directly to the consumer, okay, through the internet. Number two, the size, the estimated size, if you go by some research report, demand hai ki nahi, opportunity hai ki nahi. The opportunity roughly is about $500 billion. Yeah, 500 अरब डॉलर्स का अपॉर्चुनिटी है जो हर साल 25% से ग्रो हो रहा है. ठीक है, सो अपॉर्चुनिटी है. द आंसर इज यस. ओके, सो
जो माइक्रो एंटरप्राइजेज यहाँ सुन रहे हैं उनको ये मैसेज है कि आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आपका कोई पैशन है या आपका कोई अच्छा सर्विस है, तो अभी तक आप डोमेस्टिक मार्केट के बारे में सोच रहे थे। बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत ज़्यादा डिमांड भी है, बट इंटरनेशनल भी एक बहुत अच्छा एवेन्यू है आपके लिए, बिकॉज इस बार क्या हुआ है कि डिजिटल हैज बिकम एसेंशियल। तो आपका प्रोडक्ट नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबल में भी डिमांड है। नंबर 2, एक बहुत बड़ा फायदा इंटरनेशनल का ये होता है कि बिकॉज यू आर सेलिंग डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, आपके मार्जिन भी थोड़े बेटर रहते हैं। ओके, बिकॉज आपने जो मिडिलमैन है, जो आपके वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है, वो मॉडल से चलने की जरूरत है नहीं, आप डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच सकते हैं। नंबर 3, आपका जो भी ब्रांड है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई साड़ी का ब्रांड है, तो आप उसको डायरेक्ट कंज्यूमर के पास ले जा सकते हैं, राइट। तो उसको पता चलेगा कि ये फॉर एग्जांपल श्री फैब्रिक, ये हमारे एक बड़े मर्चेंट है, एक लेडी एंटरप्रेन्योर है जिसने इसको अपना बड़ा पॉपुलर बनना है। तो श्री फैब्रिक्स इज नाउ नोन टू एन इंटरनेशनल कंज्यूमर, वो है। फिर आप फीडबैक भी डायरेक्ट ले सकते हैं कंज्यूमर से, फिर अपना प्रोडक्ट का आप चेंज करके उसको आप बेच सकते हैं। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से in a simple way to the micro enterprises here is एक पूरी मार्केट आपको ओपन हो गई, नॉट जस्ट इंडिया बट 200-300 कस्टमर हो गए, 200-300 कंट्रीज, सॉरी। So sir, please tell us, how does one open an account with PayPal? So राशि, यू नो इट इज सुपर इजी। 3 ही चीज याद रखनी है जिसको साइन अप करना है। पहले तो आप समझ लीजिए कि फॉर ओपनिंग द अकाउंट इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। नंबर 2, आपको कोई रेंट नहीं देना है या मिनिमल फीस नहीं देना है साल भर में। तो तीन चीज आप क्या याद रखोगे टू साइन अप टू पेपैल इज, आपके पास एक पैन नंबर देना होगा, यू विल हैव टू प्रोवाइड द पैन डिटेल्स टू अस। नंबर 2, एक बैंक अकाउंट डिटेल देना पड़ेगा, इंडियन बैंक अकाउंट जिसमें आप अपना पेमेंट रिसीव करना चाह रहे हैं। तीसरा, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि किस टाइप का आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एक्सपोर्ट जो एज पर गवर्नमेंट रूल्स हमें डालना होता है। ये 3 चीजें होती है। अदर देन दैट तो स्टैंडर्ड है, नेम एड्रेस वगैरह, जो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है और कौन सा नाम से आप चला रहे हो। एंड लास्ट इज जीएसटी नंबर अगर आपके पास है तो वो भी आप दे दीजिए। इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, स्पेशली एज एन एक्सपोर्टर, टू क्लेम एनी रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। यही बस आपको चाहिए। So that's very easy. आपने बहुत अच्छे से, बहुत आसान से एक्सप्लेन किया है। So you tell me, in this COVID situation, the small and the medium merchants are badly impacted. तो सर रिवाइव कैसे उनको हेल्प मिल सकता है रिवाइवल का फ्रॉम पेपाल इंडिया? सो पहले ना लेट अस एडमिट कि ये जो फर्स्ट 3 जैन टू या अप्रैल तक बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन था, ओके, फॉर एवरीबडी। Okay, nobody had expected a pandemic या महामारी of this nature which has affected the whole globe, किसी को भी नहीं छोड़ा। But what is very interesting is I'll come to how PayPal can play a role, okay? But more important is what we have seen again back to the micro enterprise, जिनका बिजनेस डिजिटल था, okay, या कॉम्बिनेशन था फिजिकल और डिजिटल था, they were able to cope better, ठीक है, they were able to pivot very quickly। तो और उसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा हमने स्टैटिस्टिक देखा फ्रॉम अप्रैल टू जून, जिसका प्योरली डिजिटल था और जिसका इंटरनेशनल फोकस था, दे वर एबल टू ग्रो देयर बिजनेस बाय 30%। ओके, तो द थीम वाज कि अगर आप अडेप्टिव हो, अगर आपने चेंज देखा है और आपका मॉडल वैसा है, so then you were able to survive and actually thrive during the pandemic. Okay, how is PayPal supporting? To that question is, like I said, as a partner to the micro enterprise, okay, we don't compete. हम उनको 3 चीज दिलाते हैं which our exporters with their resolve and use platforms like us were able to succeed. पहला तो है PayPal is available in 200 countries. Okay. Number 2 we have got 350 million plus consumers, okay, जो PayPal को ट्रस्ट करते हैं। तो ये हम उनको एक्सेस देते हैं विच इज द डिमांड एंड पोटेंशियल कंज्यूमर बेस, ठीक है। तो दे वर एबल टू टैप इनटू दिस कंज्यूमर बेस
and not only sell their products, okay, but they were also able to receive payments very quickly, which is our third promise, that आपकी जो सेल होती है आज के तारीख में उसकी पेमेंट आपको कल आपके इंडियन बैंक अकाउंट में विद फुल कंप्लायंस टू आरबीआई रूल्स पहुंच जाती है। तो छोटे बिजनेस के लिए एक तो डिमांड बड़ा जरूरी था, दूसरा था कैश फ्लो, बिकॉज छोटा बिजनेस क्या है, 5-10 एम्प्लॉय से चलाते हैं, लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, वो लोग क्रेडिट में लिया हुआ है बट उनको पैसे जल्दी देने होते हैं। सो व्हेन यू गेट द मनी दे आर एबल टू पे देयर सप्लायर, कीप देयर एम्प्लॉयज एंड देन ग्रो देयर बिजनेस। तो वो डिमांड और हमने कैश फ्लो में हेल्प करा उनके लिए, एंड लकीली वी वर वेरी मच फोकस्ड ऑन दैट कम्युनिटी ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस। हमारे प्रोडक्ट्स भी उनके लिए सूट करते हैं, विच काइंड ऑफ रोल वी प्लेड। So we are not saying ki, we are so big that the micro enterprises needs us. We need them. It's a good partnership. They like our platform. We are able to support them with this kind of service that we offer, and it has been reflected in the numbers. So that is what I would say. The message is that अगर आप digital हो, अगर आप international focus हो, then you are able to survive. तो बाकी जो माइक्रो एंटरप्राइजेस जो सुन रहे हैं उनके लिए मैसेज ये है कि अगर आप डिजिटल नहीं हो तो प्लीज प्लान फॉर अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड टेक स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स इट। ऑप्टिमिस्टिक रहिए बट रियलिस्टिक भी रहिए। सो इफ यू आर ओनली ऑफलाइन या आपका B2B है तो देन यू शुड थिंक अबाउट डायरेक्ट टू कंज्यूमर। अगर आपका प्रोडक्ट और सर्विस है तो आप उसको देखिए। लाखों ऐसे स्मॉल एंटरप्राइजेस है जो बेनिफिट हो चुके हैं, बाकी लोग भी हो सकते हैं। दिस इज व्हाट आवर मैसेज वुड बी, एंड पेपैल इज हियर टू हेल्प। सो नाथ सर, ये बताइए, अगर कोई MSME है एंड दे वांट टू गो ग्लोबल, इंटरनेशनल बिजनेस अपना बढ़ाना चाहते हैं, तो what are the 3-4 points they should look in a payment platform? Rashi, is a very important question, especially when a new business is trying to go international. Again, I would say top 3 points. Okay, number 1. Okay, ये कितने countries में available है? Because आपको क्या करना है कि you want to reach the maximum number of countries. Then take a strong look at number 2. आप क्यों करना चाह रहे हैं? अपना business बढ़ाने, and especially direct to consumer में आपको ये देखना चाहिए how many consumers does the payment service provider give you an access to. Okay, जितना ज़्यादा उतना better है. Okay, then number 3, do they give you fraud protection in case things go wrong along with the dispute resolution? ये बहुत जरूरी है। आपका hard earned money है, आपको मिलना चाहिए। अगर कुछ problem हुआ, you should be able to talk to them. Number 4 है कि कितने करेंसीज में वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके यूजर्स कोई भी करेंसी में पे करना चाहेंगे आप, तो यू शुड बी एबल टू ऑफर मल्टीपल मैक्सिमम नंबर ऑफ करेंसीज। सो ये आप उसमें देखिए। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप ये देखिए कि व्हाट ऑल फीचर्स ये जो सर्विस प्रोवाइडर आपका इज गिविंग टू द कंज्यूमर ऑन द अदर साइड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप पूछेंगे क्यों, व्हाई एम आई वरीड? Why it is very important is ज़्यादा अगर options consumer को देंगे, whether he should be able to, for example, a US customer who is buying from the Indian merchant, credit card, debit card होना चाहिए, बैंक अकाउंट से पे करें, वो अपना कोई एयरलाइन पॉइंट से पे करना चाहिए। थिंग्स लाइक अगर वो क्रेडिट उसको मिल रहा है वहाँ पे EMI के थ्रू, वो भी he should be able to use। तो जितना ज़्यादा फंडिंग ऑप्शन कंज्यूमर के पास है, and if your payment provider is able to offer it, बहुत हाई चांसेस है कि वो उसको यूज करके आपसे खरीद लेगा प्रोडक्ट। स्पेशली हायर वैल्यू परचेजेस में क्रेडिट लेड है, ये बहुत अच्छा है। तो दीज आर सम ऑफ द 4-5 थिंग्स आपको ध्यान रखना है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल व्हेन यू लुक एट सेलेक्टिंग अ पार्टनर। सर, आई एम श्योर बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा, क्योंकि उनको कोई भी रीच करता होगा, सो दे वुड जस्ट गो विद द ब्रांड। तो आई एम श्योर कि ये आपने जो इंफॉर्मेटिव बात बताई है, दिस इज आई थिंक एक्सीलेंट। हाँ, बिकॉज एक और मैं कहूँगा कि पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए तो बहुत लोग पेमेंट प्रोसेस करके आपको दे देंगे, बट बाकी जो मैंने कहा ना, कंट्री एक्सेस, कंज्यूमर एक्सेस, रिड्रेसल, प्रोटेक्शन टू द सेलर एंड फंडिंग ऑप्शंस, ये बहुत जरूरी है। पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए एवरीबडी कैन ऑफर, बट वो तो आपका बैंक भी दे देगा।
या कोई दूसरा भी दे देगा, बहुत सारे होते हैं ऐसे, बट who is able to offer you a bouquet which will grow your business. So it is not just payments, it has to be payments plus plus. वो देखें जरा. This is very helpful what you just said, Mr. Nath. But some businessmen in smaller cities, they are still following the traditional methods of payments. वही उनको वैसे ही cash payment की आदत होती है. So, what do you think could be encouraging factor for them to go with PayPal? It's a very important question. Okay, but उससे पहले ना, before PayPal, I would say, see, the internet is a great leveler. ठीक है, तो बरेली में जो बैठा हुआ है बिजनेसमैन या एक फ्रीलांसर है या एक वुमन एंटरप्रेन्योर है, लेट्स से शी मेक्स वेरी गुड हैंडीक्राफ्ट, उनका पैशन है, उनके लिए जैसा मैंने कहा, इंटरनेट एंड प्लेटफॉर्म्स लाइक पेपैल हैव मेड गिवन अ ग्लोबल एक्सेस. इट डजंट मैटर आप कौन से सिटीज में है. लेट मी टेल यू, पेपैल के सेलर्स अभी 1500 सिटी से ज्यादा है. ओके, उसमें से 5 ही तो मेट्रो है, बाकी सब तो छोटे ही शहर है. ओके, so we have got sellers from Badoi, and even small locations, even from northeast of India. Okay, तो ऐसे छोटे छोटे शहर से लोग हैं. So एक तो internet has provided this great leveler. Platforms like PayPal are giving this global access. Number 3, more important है ना, cash आप domestic से ले सकते हो, but cash is the ultimate convenience. उसका नेक्स्ट बेस्ट चीज क्या है? डिजिटल पेमेंट्स. एंड पीपल लाइक पेपैल, आवर एंडेवर इज टू गिव द मनी एज क्विकली एज पॉसिबल. तो आज का आपका जो सेल है वो नेक्स्ट दिन आ रहा है बैंक अकाउंट में, ठीक है, बट आपको एक इंटरनेशनल मार्केट मिल रहा है. देन यू आर ऑल्सो गेटिंग अवे फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आर एसोसिएटेड विद कैश. कि कैश को आपको स्टोर करना है, उसको कहीं ट्रांसपोर्ट करना है, बैंक में डिपॉजिट करना है. ये तो पहले भी मुश्किल था, कोविड में तो और भी मुश्किल हुआ है, राइट? आप कैश कलेक्ट करके क्या करोगे, राइट? वेयर इट कम्स इनटू योर बैंक अकाउंट, आप उसका स्टेटमेंट बनाइए, इट्स वेरी इजी टू मैनेज. सो देयर आर बेनिफिट्स टू अ स्मॉल बिजनेसमैन. दैट्स व्हाई वी से द लोकल कैन रियली बिकम अ ग्लोबल बिजनेस. नंबर 2, डिजिटल इज द वे फॉरवर्ड फ्रॉम कैश टू डिजिटल पेमेंट्स. ओके, आपको कन्वीनियंस भी है, सेफ्टी भी है, and more importantly, in a way, you are also now starting to contribute to nation building, because वो उसमें से तो आपके टैक्स से तो गवर्नमेंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर सर्विसेज प्रोवाइड करती है. तो यू आर ऑल्सो इन अ स्मॉल वे पार्टिसिपेटिंग इन नेशन बिल्डिंग. आपको दूसरी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कोविड में, दैट अपार्ट फ्रॉम डिमांड एंड कैश फ्लो जो पेपैल सॉल्व करती है, मेक्स यू एन इंटरनेशनल businessman. When you get this money into your bank account, you can also pay your employees into their bank account. तो आप उसका पूरा चेन देखिए. Otherwise you will give them cash payment, they are going to go and stand in the bank, आप चेक दोगे, all those problems get sorted out. The message is there is no option but to go digital. Okay, the time is now. आप डिले मत करिए इसको, because अगर आप डिले करोगे तो आप छूट जाओगे इस रेस में. अगर इसमें चलिए, यू टेक एडवांटेज ऑफ द टेल विंड एज दे से ना, जो भाव के साथ चलिए, उसके अगेंस्ट मत चलिए, बहुत मुश्किल होगा. That would be my kind of some pointers to your small businesses in tier 2 and tier 3 cities. So that's very in a very easy manner you have explained, and it's looking very, very helpful to us. So tell me something. There are millions of freelancers, women entrepreneurs, जो खुद ही अपना सेटअप बनाते हैं, खुद ही घर से काम करते हैं. How easy it is? Are there any special features with PayPal जो उनको help कर सके? See, this is a very good point. Okay, freelancer का मैं एक बात बताता हूँ. इंडिया का सबसे बड़ा strong point है freelancers और उसके अंदर अपने services exports. Okay, and अगर China is for manufacturing, India is for knowledge-led export of services. Okay, तो India is the largest community of freelancers in the world. Okay, ये अपने ऑडियंस को मैं बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि 1 out of every 4 freelancers globally is from India. Okay, number 2, उसके क्वालिटी ऑफ वर्क को बड़ा जाना जा रहा है. It translates into the highest. ये लोग है ना per hour basis पे चार्ज करते हैं अपना सर्विसेज के लिए. So we command, Indian freelancer commands one of the highest rates per hour.
ओके. नंबर 3, हमारे नॉलेज बेस्ड जो सर्विसेज है इसका बहुत ज्यादा डिमांड है. ओके. सो अपॉर्चुनिटी अगेन इज वेरी ह्यूज. हाउ कैन पेपैल हेल्प? पेपैल इज बिल्ड फॉर द स्मॉल बिजनेस, इन पर्टिकुलर फॉर द फ्रीलांसर. उनके पास बड़ा सेटअप होता नहीं है. सो पहली बात है, आपको पेपैल अकाउंट ओपन करने के लिए डू यू पे अ कॉस्ट? द आंसर इज नो. सिंपल रजिस्ट्रेशन. 3 चीज आपको करनी है. पैन कार्ड देना है जो इमीडिएट वैलिडेट हो जाएगा. नंबर 2, एक बैंक अकाउंट अटैच करिए. नंबर 3, सेलेक्ट द करना चाहेगा वो सेलेक्ट करेगा. ही फ्रीलांसर के लिए क्या बड़ा जरूरी है कि वो फिक्स कॉस्ट नहीं पे कर पाएगा. ही विल गेट बिजनेस वंस इन अ व्हाइल, राइट. वो शायद 8 घंटा काम कर रहा है, फिर वो अगर वुमन एंटरप्रेन्योर वो ना घर का काम करके शाम को 4 घंटे अपने पैशन या सर्विसेज के लिए वो बैठी है, योगा क्लास सिखा रही है, ट्यूशन सिखा रही है. वी हैव गॉट अ लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, okay, who are into this, okay, with very high demand. So they cannot pay a fixed price. तो हम क्या करते हैं, our commission is only when they have received a sale. So they are paying from their profit, not a fixed cost, no commitment. Fourth is our tools. उनको अलग से इनवॉइसिंग सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है. पेपैल के अंदर लॉग करके एक सिंपल इनवॉइस बना लो, अपना ब्रांडिंग लगा लो और अपने कस्टमर को भेज दो. कंज्यूमर ऑन द अदर साइड जस्ट क्लिक्स ऑन द लिंक एंड पेज थ्रू पेपैल. ओके. और वो एक अपना कस्टमाइज लिंक, लेट्स से उनका है से आई एम जस्ट यूजिंग योर राशि योगा क्लासेस. ओके. नाउ आप क्या कर सकती हैं कि वेरी सिंपल, ए वुमन एंटरप्रेन्योर कैन एक्चुअली क्रिएट अ वेब व्हाट वी कॉल एज अ पेपैल लिंक. अपना कस्टमाइज लिंक की राशि योगा क्लासेस. ओके. और वो लिंक अपना वो पॉपुलर कर सकती है थ्रू पेपैल. एंड व्हेन देयर कस्टमर हैज टू पे से $100 पर मंथ फॉर द क्लास, वो लिंक भेज देगी उसको. तो सामने जो यूएस यूजर है, यूके यूजर है, वो क्लिक करके वो लोग पे कर सकते हैं. सो एक पर्सनलाइज लिंक भी बना सकते हैं फ्रीलांसर. सो ये सारे टूल्स हैं उनके लिए. सो फॉर द स्मॉल, बाय द स्मॉल, ऑफ द स्मॉल, ऐसा वाला हमने बनाया हुआ है. एंड खास करके फ्रीलांसर हैं तो हमारी कम्युनिटी में जो लाखों सेलर्स हैं उसमें से 50% तो फ्रीलांसर हैं. वी आर हैप्पी टू शेयर विद यू सम सक्सेस स्टोरीज एंड सम वीडियोस लेटर. And maybe on a future call even have some of them come and share how they have grown their business. कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना फ्रीलांस बिजनेस शुरू करा था अकेले से, अब इतना काम आ रहा है उनके पास कि उन्होंने वो काम आउटसोर्स करना शुरू किया और फ्रीलांसर को. तो एक माइक्रो बिजनेस मीडियम हो गया, मीडियम से लार्ज हो सकता है. दिस इज द पॉइंट. So that was very insightful. आपने बहुत ही easy way से explain किया है. So, but in smaller cities and smaller businesses, the businessmen are very scared because they're scared of the frauds. So, how does PayPal help in protecting merchants and consumers regarding these fraud payments? So, this is another very, very important part. See, money is hard earned and it is very personal. ओके. कंज्यूमर अपना एक ट्रस्ट करके पेमेंट दे रहा है. दूसरी साइड में इंडियन एक्सपोर्टर है जो अपना रिस्क लेके इज सेलिंग. वन इज टाइमली पेमेंट्स एंड सेकंड इज सिक्योरिटी ऑफ द पेमेंट. सो पेपैल ने व्हाट वी हैव क्रिएटेड इज अ ट्रस्टेड नेटवर्क ओवर लास्ट 20 years. ओके. सो वन इज जो कंज्यूमर साइड से ओरिजिनेट हो रहा है वो तो व्हाट वी कॉल ए शॉप विदाउट शेयरिंग. ही इज नॉट टेलिंग द इंडियन एक्सपोर्टर कि आपने उसने कौन से कार्ड या बैंक से पे करा. एंड इफ थिंग्स गो रॉन्ग ऑन द कंज्यूमर साइड हम उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं. कमिंग टू द इंडियन बिजनेसमैन, वो कह रहा है कि मैं ऑनलाइन चला जाऊं, मेरे पैसे आएंगे कि नहीं मेरे बैंक अकाउंट में, या किसी ने उसको डाइवर्ट करके दूसरे बैंक अकाउंट में ले लिया. दीज आर द काइंड ऑफ कंसर्न्स इन देयर माइंड. ओके. So what we also have is security not just for the buyer but also for the Indian seller. Okay, how are we doing it? Indian seller जो है ना, कभी अपना बैंक अकाउंट डिटेल शेयर ही नहीं कर रहा है बायर से. All he is sharing is email ID. ठीक है. I will say rashicreations@gmail.com. Okay, and this is what he will send to his customer or put it on his website. Okay, or through that link or via email कि सर आप मुझे ना $100 है ना, आप पेपैल में लॉग इन करके इससे कर लीजिए. तो ऑल ही नीड्स टू डू इज क्लिक अ लिंक एंड ऑल ही सीइंग इज एन ईमेल आईडी ऑफ द सेलर और पेमेंट हो गया.
So जब मैंने बैंक अकाउंट शेयर ही नहीं करा किसी से, so where is the question of somebody trying to break into the details? Okay, that's your first level of protection. Number two, we do a lot of work behind the scenes to make sure कि ये जो रिसीवर है इंडिया में, is he the real receiver या कोई और तो नहीं बन रहा है उसमें काम, ये सब हम रियल टाइम में करके we ensure security of the payment. There are many times, very few times things may go wrong. In that case, the seller can call us up and say कि सर मैंने तो अपना डिलीवरी कर लिया बट पता चला कि वो तो फ्रॉडुलेंट बायर था, मेरे तो पैसे चले गए, आप तो मुझसे ले लोगे उसका अभी चार्ज बैक या रिफंड जो भी है. तो वी विल आस्क द सेलर कि नो प्रॉब्लम बॉस, यू आर कवर्ड अंडर पेपैल सेलर प्रोटेक्शन, यू हैव टू फुलफिल अ फ्यू कंडीशंस, आपने कुरियर करा था कि नहीं, फ्यू थिंग्स वी विल शेयर. इफ दे शो कि उन्होंने गुड फेथ में काम करा है, वी विल रिफंड द मनी टू देम. So that was very insightful, Mr. Nath. Tell us, is PayPal dispute friendly? So Rashi, again very important. Okay, I will build on from my previous response. Okay, problem to will problems happen? The answer is yes. Okay, very few number of problems come to us because of fraud or unauthorized transaction. Okay, there could be other issues where the buyer has raised a complaint against the seller. So what is the recourse for the Indian micro enterprise? Okay, they can just call up PayPal or send us an email and raise a dispute. Okay, we have a way of looking at both the transactions. Buyer ने क्या करा था and seller ने क्या करा था, and we will try and resolve this dispute. So is there a dispute mechanism? The answer is yes. Is it easy to use and accessible by any type of a seller? The answer is yes. Okay, the primary role is to help the consumer resolve, but also offer sellers this forum to put in their voice and get a resolution. For example, जैसा मैं बता रहा था कि अगर कोई फ्रॉड हुआ, उसको पता चल गया कि कोई बायर फ्रॉड ही था और उसने फिर भी प्रोडक्ट्स बेच दिया, we still have seller protection and the dispute resolution is available. So this is the kind of mechanism we have, Rashi. So that's great, sir. Sir, but you tell me how approachable, अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है तो वो कंपनी को पेपाल के थ्रू कितना अप्रोचेबल होगा? नहीं, we are just a phone call and a chat or an email away. उसको क्या करना है? If he finds that there is a problem, he or she, all they need to take is, उनको तो email आया होता है कि ये transaction हुआ, वो reference number लेके आप email कर दो या chat कर लो, okay, or by the phone, okay. All these three are available for Indian exporters. Okay, and we have this service. हमने क्या करा है? More and more the service is being offered from India during Indian business hours. Of course, during COVID we had to make some changes, email और chat facility, because हमारे भी employees अभी सारे घर से काम कर रहे हैं. Otherwise, we have over a period of time bought the support and services closer to where our customers are, which is to India. तो India से आपको Indian business hours में मिल रही है service. So we it's very easy to reach us. So there's no problem. They may not even wait for a call. They can just email and raise a dispute, later on follow up with a call or a chat if needed. So that's wonderful and very approachable, what I understand from what you just told us. So sir, I would request you, आप एक बार onboarding process दोबारा से short में बताइए. हाँ बिल्कुल. उससे पहले एक और point, dispute resolution में we have a dispute resolution center also on our website. Okay. तो वहाँ पे भी काफी tools हैं where the merchant can use. So email है, chat है, telephone है, and plus the website itself. Okay. तो एक community based setup भी है जहाँ पे उनको ये भी पता चलेगा कि उनके जो queries हैं has been resolved for other merchants. या उनको issue है तो they can also raise it on that community site. तो ये भी available है. Now coming to onboarding. Firstly मैंने जैसा कहा, to sign up it is totally free. Okay. हम चार्ज आपसे जब लेंगे जब आपकी सेल होगी, सो डोंट वरी अबाउट इट. तो साइन अप करने में क्या, आपकी बेसिक डिटेल्स, नेम, एड्रेस, एज अ बिजनेस, जो भी बेसिक डिटेल है, उसके बाद यू ओनली नीड 3 थिंग्स: पैन नंबर, बैंक अकाउंट अटैच करना है जहाँ पे वेयर यू वांट टू रिसीव द मनी, एंड देन अ पर्पस कोड विच आरबीआई आस्क्स अस टू कैप्चर कि एक्सपोर्टर क्या टाइप का सर्विस या गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है. बस दिस 3 एंड यू आर सेट अप टू नाउ रिसीव पेमेंट्स from 200 markets across 100 plus currencies, and you can sell to 350 million users. So बस आप इसको sign up कर लो. Once you are set up, everything has gone through,
now you can receive payments internationally. It is as easy as this. That's very handy and very helpful, Mr. Nath. I would like to tell all our followers that Mr. Nath Parmeshwaran is responsible for driving advocacy, strategy, and public policy in e-commerce and online payments for PayPal. And sir, we are really thankful to you that you were on our show. आपने MSMEs के लिए जो solutions बताए हैं आज digital payments के, I think none of the other brands have actually explained it in such a simpler way. ऐसे लग रहा है कि बहुत ही आसान है. हमारे अंदर जो डर होता है कि हम ये शायद करेंगे हमारे पैसे खो जाएंगे, आई थिंक businesses will definitely be encouraged and supported by PayPal India. Thank you so much, sir, कि आप आए और आपने हमें अपना टाइम दिया. We are really grateful to you. Thank you so much.